मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया फॉर ऑल द राइट रीजंस। क्योंकि हम में से तो बहुत लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि इस दिल में क्या क्या छुपा हुआ है। एमपी की काफ़ी जगह अभी भी एक हिडन जेम है, एंड टुडे आई एम टेकिंग यू टू एक्सप्लोर वन ऑफ देम। वेलकम फ्रॉम ओरछा, जहाँ लगता है कि मानो वक्त थोड़ा ठहर सा गया हो। And in this slow paced travel, you will truly soak in the history, rich culture, and the serene beauty of the Betwa River. I'm standing in this gorgeous property Orcha Villa. So we checked into this property कल ही, and कल we were just looking at the property and हम आसपास थोड़े spots वगैरह देखने गए. And this property, the best part that I feel is, it is on the outskirts but just 2 kilometers away from all the major tourist places जो ओरछा में हैं. So you can avoid all the rush, the honking noises and everything, but you are really close to all the tourist destinations in Orcha. Even though the temperature ओरछा में is really high at the moment, मैं सोच रही थी because अभी बारिशें भी चल रही हैं and everything, so यहाँ पर थोड़ा temperature कम होगा. It is hot at the moment, but when I asked local people, they were like अभी तो temperature फिर भी relatively काफ़ी ज़्यादा आपको कम मिल रहा है. And it is so green. So if you are coming after the rains have happened, तो उसके बाद जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा greenery मिलेगी. Even this resort जहाँ पर हम रुके हुए हैं is surrounded by so many trees and it looks like you are in the middle of the forest. So इसी लाइन में जितने rooms आपको दिख रहे हैं यही सारे available हैं. And this is our room, which is going to be a mess because 2 girls are sharing it, but how? So this is a huge room and the washroom is even good. We have the AC and washroom में geyser भी है. So जितनी भी basic requirements हैं, the room has it all. It is 11 AM and we are going towards the Orcha Fort. So धूप तो काफ़ी ज़्यादा है इस पॉइंट पे एंड शाम को कल हमने देखा था तो बहुत सुंदर लगता है. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल टाइम टू एक्सप्लोर ओरछा फोर्ट तब. हाउएवर वी नो बिकॉज आई विल बी टेकिंग शूट्स एंड ऑल शॉट्स एंड ऑल, सो मुझे टाइम थोड़ा लग जाएगा. सो आई थॉट वाई नॉट गो अराउंड दिस टाइम एंड वॉक करके ही ना फोर्ट के आसपास ही हैं बाकी सारी मेन अट्रैक्शन, सो वो भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे. Founded in the early 16th century by Maharaja Rudra Pratap Singh of the Bundela dynasty, Orcha was chosen as the capital of the kingdom. And over the years, Orcha became the cultural and architectural hub. और आज के टाइम में इस जगह की खूबसूरती आपको हर एक कोने में दिखाई देगी. And in the center of this beauty stands the magnificent Orcha Fort. We are here at the Orcha Fort and यहाँ पर बहुत सारे महल हैं and the first one that you see just behind me is the Raja Mahal and साथ में जहांगीर महल भी है. So all these consist of the fort, the majestic structure that you see once you enter Orcha. आइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि राजा महल का पहला वाला पार्ट है, इसको हम पब्लिक ऑडियंस हॉल कहते हैं दीवाने यहाँ. आप एक गौर करने वाली बात है कि जो राजा का सिंहासन है वो एक कोने में लगाया गया है. नॉर्मली आप देखेंगे कि सेंटर पे बैठा है, तो उसका रीज़न ये है कि राजा का सिंहासन कोने में लगाने का मतलब ये है कि राजा जब किसी के साथ न्याय करे तो उसका चेहरा देख के न्याय ना करे कि ही इज़ माय फ्रेंड. ये आप देखें राजा महल का नॉर्थ फेस दरवाजा है. राजा इसको तब यूज करते थे जब वो ऑडियंस हॉल में दीवाने अच्छा मतलब फोर्ट में आते थे.
itself there is Jahangir Mahal, which was made for Akbar's son, and it is the first place जहाँ पर जो भी आप टूर गाइड करोगे वो आपको लेकर जाएंगे, and that's the Jahangir Mahal. In the center of Jahangir Mahal and जितने भी 4 corners हैं ना, they are identical, and जो architecture है it's a mix of Hindu and Islamic architecture. Also, as I told, this was made for Salim, and it was for the friendship that was there between the king of Bundela dynasty जो वीर सिंह थे उस टाइम पे, and Jahangir. Looking at this structure, it might look that this is all wood. However, ये stone से carve किया हुआ है, and if you look closely, there is elephant, peacock. इतना minute काम है, and each of it represents either Hindu or Islamic architecture. यहाँ पे आप देखेंगे ये पत्थर पे की गई कारीगरी है, ये आप देखें छेनी हथौड़े से किया गया पूरा काम है, देखने में कितना सिमेट्रिकल है, कितना एक जैसा है। और यहाँ पे आप देखें दोनों तरफ हाथी है, सेंटर पे पीकॉक है, इसके ऊपर आप देखेंगे सारी स्टोन टाइल्स है। यहाँ पे आप देखें कुछ ह्यूमन फिगर है, कुछ एनिमल फिगर है, इस तरह से फिगर बनाए हैं। जहाँ से हम एंटर किए थे, it was actually the back gate of Jahangir Mahal, and this is the front gate. So this is east facing, since it was made by a Hindu king, so east was a symbol of good luck. And यहाँ पर जो जाली work है, that is the one which mimics the Islamic architecture. It might not be visible, but यहाँ पर पूरी आपको greenery ही दिखेगी, and then there is a mountain range as well. And इसलिए मैं आपको कह रही थी कि अगर आपको मध्य प्रदेश कभी भी आना है, रेनी सीजन के बाद is the best time to come. We are heading towards the first floor of Jahangir Mahal. At one of the balconies of Jahangir Mahal, and obviously the view is amazing. But जो ये balconies थी, यहाँ पर बच्चे वगैरह खड़े होते थे, so कोई भी राजा आता था, because that's the entrance. So कोई भी राजा आता था तो यहाँ से वो देख सकते थे. क्वींस के लिए जो balconies थी, उस पे एक्चुअली जाली लगी होती थी, ताकि जो भी राजा आ रहा है वो क्वींस को ना देख सके, या फिर उनके साथ जो बाकी लोग हैं, तो क्वींस देख सकती है, but no one else can see who is looking inside. On the last floor of Jahangir Mahal, इसके ऊपर भी है, बट ऊपर जाने का कोई तरीका वगैरह नहीं है. So this is practically the last floor. Inside the boundary of Orcha, जो आपको फोर्ट से एक बाउंड्री दिखेगी, काफ़ी सारे ruins भी हैं उस एरिया के अंदर. So वहाँ पर जो है मिनिस्टर्स जो थे and special people of the king वो रहते थे. And yeah, that is one thing that you can see once you look out of the balcony. राजा महल, सो जहांगीर महल से हम इधर एंटर हुए हैं, एंड दिस इज़ द कोर्टयार्ड एरिया जिसको कहते हैं मर्दाना समथिंग. एंड एक साइड है वहाँ पर लेडीज़ के लिए भी है, सो यूजुअली अलग अलग रखा जाता था. एंड एज वी कम इनसाइड, तो यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पे जब भी नया राजा बनता था तो उसका राज्य अभिषेक किया जाता था. वी आर हेयर इन द फर्स्ट रूम, जो राजा महल में जैसे ही आप एंटर करोगे राइट हैंड साइड पे मिलेगा. एंड यहाँ पर जितने भी विष्णु भगवान जी के इनकारनेशंस थे वो सारे डिस्प्लेड हैं पेंटिंग्स में. एंड दिस इज़ बेसिकली, दिस वॉज फॉर दी फीमेल अटेंडेंट्स जो राजा की थी, उनके लिए ये रूम था. On the first floor of the Raja Mahal is another quarter for the queen, and यहाँ की
स्पेशलिटी अपार्ट फ्रॉम द पेंटिंग्स एंड जाल वर्क ये है कि यहाँ से छत्रभुज टेम्पल जो है बिल्कुल डायरेक्ट दिखता था. सो विदाउट गोइंग एनीवेयर द क्वीन कुड जस्ट सिट हियर एंड लुक एट द टेम्पल. ऑल्सो दिस वॉज द सीक्रेट पैसेज फॉर द किंग. सो अगर कभी भी अटैक वगैरह हो तो यहाँ से वो जा सकते हैं. एंड दिस पैसेज इज़ लाइक 45 किलोमीटर्स लॉन्ग. सो देयर इज़ अनदर एरिया जहाँ तक ये पैसेज राजा को सेफली पहुँचा देता था. इसके ऊपर आप देखें बहुत सुंदर पेंटिंग है. ये जो कलर है सारे नेचुरल कलर हैं, सारे फूल पत्तियों से बनाए गए एक कलर है. जब आप पर्शियन कारपेट देखेंगे तो इस तरह की डिज़ाइन आपको पर्शियन कारपेट पे देखने को मिलेगी. It's 1 PM and we have come to होटल शीश महल के रेस्टोरेंट में. एंड दिस इज़ क्लोज टू जहांगीर महल. लाइक जहांगीर महल की बैक साइड पे जब आप एंट्री लेते हो तो वहाँ पर ही है. एंड दिस इज़ बाय MPT टूरिज़म. एंड एज़ यू कैन मेक आउट बाय माई हालत, सो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे. एंड ऑब्वियसली बीच में वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पे क्लिक करनी थी, सो इट वॉज एडिंग अप टू द एक्सर्शन. सो माई फ़ोन नीड्स टू कूल डाउन एंड सो डू आई. एंड यहाँ पर हम हल्का फुल्का कुछ खाएँगे. लाइक वील हैव स्नैक्स. हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया है. एंड या आफ्टर दैट once we have cooled down and थोड़ा सा बाहर का भी टेम्परेचर थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए, उसके बाद we will be going to our second place here in Orcha. राइट नाउ द टाइम इज़ 5:30 एंड धूप तो अब काफ़ी कम हो गई है. एंड सनसेट के लिए वी हैव कम टू द रॉयल छतरीज. छत्रभुज टेम्पल एंड राम राजा टेम्पल ये सारे हमारे अभी बचे हैं, वो हम कल ही देखेंगे. सो फॉर सनसेट वी आर हेयर. एंड द रीज़न दीज छतरीज आर मेड इज़ बिकॉज जब भी एक किंग की डेथ होती है तो उनकी मेमोरी में बनाई जाती है ये छतरीज. द सेम इज़ ऑल्सो देयर इन जैसलमेर फॉर जैसलमेर के जो राजा हैं एंड उनकी आगे फैमिली लिनिएज जो है उनके लिए. And the last one that you will see is the only छतरी जो flat top की है. And this was for the last king of the dynasty, which is the Bundela dynasty, who was Veer Singh Dev. प्रॉपर्टी सुपर एग्जॉस्टेड. मेरी आवाज़ पे मत जाना जैसे वीडियो ऑन होती है. आई ट्राई टू एक्ट सुपर energetic and all. So sun has set and in some time this whole place will be lit and हम dinner के लिए बाहर आएंगे. So then I'll show you guys. It's 9 PM. The resort is all lit. It looks gorgeous, and we have come to the dining area. कल हम यहाँ पर नहीं आए थे. कल we were sitting outside, and this is amazing. Like chairs वगैरह लगी हुई हैं. Like the one that you have banquet hall जैसे होता है उस टाइप से बना हुआ है. And food हमने कल भी ट्राई किया था. आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट में भी पराठे खाए थे. तो food is really good. Obviously थोड़ा सा प्राइस ही रहता है.
However, we enjoyed the food. हमने snacks भी खाए थे. Everything was good. And अभी के लिए dinner order किया है. So we will try it out and let you guys know how the food is. मेरा पनीर नहीं है, मैं उस पर देख रही थी. सो द फूड इज़ टू गुड. मैंने इनको बोला था कि पनीर स्पाइसी कर देना. अच्छा ना, स्पाइसी है. एंड इट्स स्पाइसी. दे वांटेड अस टू ट्राई दीज न्यू डिशेस. सो ये रिसेंटली ओपन हुआ है जो रिजॉर्ट है ना. सो दे आर ऑब्वियसली ट्राइंग आउट विद द मेन्यू एंड एवरीथिंग. सो दे वांटेड अस टू ट्राई दीज न्यू डिशेस एंड इट्स अमेजिंग. मेन कोर्स में 2 डिशेस जो है वो हमने कल भी ट्राई की थी. सो वी हैव ऑर्डर्ड दैट फॉर अ सेफ साइड. बट येस, देयर इज़ वन मोर डिश दैट वी विल बी ट्राइंग आउट इन द मेन कोर्स. एट दिस पॉइंट आई ऑनेस्टली फॉरगॉट कि हमने पनीर टिक्का भी ऑर्डर किया था. इफ़ यू स्टिल कैन मेक इट आउट, आई लव पनीर. सो पनीर की जितनी भी डिशेज़ होती हैं, आई टेक देम रियली सीरियसली. कल फिर कुछ नया ट्राई करेंगे. आप जो रेकमेंड करो. हाँ. नहीं, कल आप जो रेकमेंड करो. It's 8:30 and we are going to cover all the temples that are there in Orcha. There are basically 3 temples. So हमने ऑटो बुला लिया था. कल ही हमने नंबर ले लिया था. So I guess that's the best option. आप एक ऑटो कर लो and they will show you around and everything. And काफ़ी सही कॉस्ट रहता है. हमें 300 वो चार्ज कर रहे हैं for all these 3 temples and obviously dropping us here back. तो yeah, let's go. At the Ram Raja temple. Now the reason this temple is so special is because this is the only temple in India जहाँ पर राम जी को as God and as a king pray किया जाता है. And this is very close to the Chhatarbhuj temple. So जो यहाँ पर idol रखे गए हैं वो actually Chhatarbhuj temple में रखे जाने थे. However, जब क्वीन गणेश यहाँ पर अयोध्या से चलकर राम जी को लेकर आए तो उनकी ये कंडीशन थी कि वो उनको जहाँ पर रखेंगे वो वहाँ पर ही विराजमान हो जाएंगे. एंड यहाँ का जो पैलेस का किचन था उन्होंने वहाँ पर रख दिया एंड उसके बाद यहाँ से मूर्ति हिली ही नहीं. So that is why the name is Ram Raja Temple. Also, if you look closely at the temple, there are hues of yellow, pink and off-white color. Don't make the mistake that we made. So कल हमने जब ओरछा फोर्ट की टिकट ली थी, that's applicable for 2 other places, which is Chhatarbhuj temple and Lakshmi temple as well. So हमें अभी के लिए फिर से ओरछा फोर्ट जाना पड़ा एंड वहाँ से हमें टिकट मिली है जो आज के लिए एप्लीकेबल होगी अगर हमें फोर्ट भी फिर से घूमना है एंड फॉर बोथ द टेम्पल्स एज वेल.
this is the Chaturbhuj temple and very close to Ram Raja temple आपने देखा होगा and this is the place जहाँ पर राम जी का idol initially रखा जाना था and now it is actually विष्णु जी का temple, so यहाँ पर विष्णु जी को प्रे किया जाता है. This temple 16th century. Okay. ये बनाता है जो का राम जी के मंदिर, लेकिन राम जी इसमें नहीं आए. राज बढ़े कहाँ किचन में. किचन में. तो इसे बोलते भूल भुलैया. ठीक है. ऐसा लखनऊ का इमाम बाड़ा. अच्छा, यहाँ पर आप अकेले नहीं जा सकते, आपको है ना किसी का सपोर्ट. Four step, three close, one open. So you come down, after you again up. Okay. Up. ठीक तो है. इसमें आप boy, you follow boy, they go in top. Okay. ठीक है. There is a whole Bhul Bhulaiya in the Chaturbhuj temple. So you need a guide. You need someone who will take you to the top of the temple. नहीं तो आप यहाँ पर गुम हो जाओगे. हाँ, शूज़ का स्लिप हो जाते हैं. आई वॉज जस्ट होपिंग बीच बीच में बिकॉज बहुत नैरो है जो एंड स्टीप है जो स्टेप्स है ना, सो आई वॉज जस्ट होपिंग बिकॉज ऑफ क्लोस्ट्रोफोबिया आई डोंट गिव अप बट इट ओपन्स अप टू सच विंडोज, सो येस. We are at the top. It's so gorgeous. You see whole of Orcha from here. Before we leave from here, I wanted to point out one more fact. जब मैंने आपको राजा महल दिखाया था उसमें मैंने बताया था there was a window जहाँ से रानी को यहाँ का गर्भगृह straight दिखता था. So it is actually in straight line. सिर्फ टेम्पल नहीं दिखता, वो इतनी सही लाइन में बना हुआ है कि सीधा गर्भगृह एंड विष्णु जी की मूर्ति दिखती है. In Ridhima's words, it was an absolute leg day. So we are tired and right now the time is 10:30 AM. However, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है and हमारी itinerary में सिर्फ एक टेम्पल रह गया है. We have explored almost everything here in Orcha. So वो टेम्पल के लिए अब we are planning जब टेम्पल 5 बजे के पास बंद होता है उससे थोड़े से पहले हम जाएंगे ताकि धूप भी थोड़ी कम हो जाए and हम comfortably explore भी कर पाएँ. It's 3:30 and we are leaving काफ़ी पहले सनसेट के बिकॉज अभी लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखना है एंड उसके बाद लेट्स सी इफ़ देयर इज़ समथिंग मिसिंग, समथिंग विच वी हैवंट हर्ड ऑफ, तो मे बी हम वो भी कवर करेंगे. At the Lakshmi Narayan temple and it's built on top of a hill, so you have a bit of slope that you need to walk. अगर अपनी आपके पास कार and यहाँ two wheeler है, so you can obviously go straight to the entrance of the temple. Behind me you can see जितने भी major tourist attractions हैं, they are visible from this hill. The temple has
all these paintings, which is one of the speciality इस temple की, Lord विष्णु की काफ़ी सारी life stories and उससे जो प्रेरित paintings हैं वो सारी हैं. And there is also one more that I'm looking for. एक और painting है जिसमें there is a huge bird who is holding an elephant in its claws. I still can't find it. मैं 4 कॉरिडोर्स घूम चुकी हूँ. बट येस, अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा की लाइफ से रिलेटेड भी पेंटिंग्स काफ़ी सारी हैं. Had to ask for help, but finally found the painting. It's that one. Here is the first floor of the temple. Nothing much to see here, but yes, जो आपको नीचे से व्यू आता है, इमेजिन यू सीइंग इट फ्रॉम मोर एलिवेशन. जहाँ तक स्टेयर्स लेकर जाएंगे वहाँ तक तो जाएंगे. एंड दिस इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट. At one of our favorite cafes that we have found in Orcha, it is Nomad's Cafe. So हम सुबह भी आए थे यहाँ पर, but apparently 10:30 के पास ये बंद था. So अब आया हम, we'll have some snacks and coffee, which is apparently really tasty. So there is no power here. लाइट गई हुई है सुबह 5 बजे की एंड अभी तक लाइट आई नहीं है. सो वी आर सिटिंग इन द टेरेस एरिया ऑफ दिस कैफ़े एंड बहुत हिप्पी वाइब्स है. इट्स नॉट समथिंग लाइक फैंसी यू वुड एक्सपेक्ट है. सो बहुत हिप्पी वाइब्स हैं, बट द फूड इज़ सो गुड है. अभी के लिए व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड इज़ अ ब्लैक कॉफ़ी. मेरा हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सो येस, अ ब्लैक कॉफ़ी फॉर मी. हाँ. सो हमने जो यहाँ पर फूड ऑर्डर किया है, हमें रेकमेंड किया गया था वॉज अ मेरिनारा पिज़्ज़ा एंड वाइट सॉस पास्ता. वाइट सॉस पास्ता हमने कल भी खाया था, सो वी नो हाउ इट्स गोइंग टू टेस्ट. एंड द मेरिनारा पिज़्ज़ा, आई हैव नेवर ऑनेस्टली ट्राइड इट, बट येस, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट. Oh, so cheesy. Yeah, it's good. It's thin crust as well, so yeah, that's something I like. Annie knows that she has to reduce her caffeine intake, yet she has 2 cups of coffee back to back. Don't be like Annie. It's 6:30 and we woke up to see the sunrise here in Orcha, and हम थोड़ा सा लेट हो गए, so sun ऑलरेडी राइज कर चुका है. हाउएवर उसकी अभी भी किरणें निकली नहीं है. सो वी आर टेकिंग अ हाइपरलैप्स वीडियो विच यू विल सी इन फ्यू सेकेंड्स, बट आई वांटेड टू शो यू गाइज दिस स्पॉट. लाइक यहाँ पर सिर्फ लोकल्स हैं. पीछे एज यू कैन सी छोटा सा झरना है बेतवा रिवर का, एंड इट्स राइट बिहाइंड दीज रॉयल छतरीज. सो आई डोंट नो हमें ये स्पॉट पहले क्यों नहीं पता था, बिकॉज दिस इज़ so good. Obviously हम अकेले यहाँ पर नहीं आ सकते थे because it's quite secluded. However, it's gorgeous nonetheless.
गौरव सर मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसके बाद। बोले तू तो इधर आ, अब वो ट्रेंड भी ले लिया। बोले कि तेरे लिए तो गाड़ी सीखी है, मैंने नीचे आ तू। We are leaving from Orcha and we saw a beautiful sunrise. Thank God हमने देख लिया, हम 2 दिन से sunrise देख ही नहीं पा रहे थे. But before leaving we are happy we could see the sunrise. And I will talk about the property as well. I guess मैंने बीच में भी काफ़ी बात की है. So the property is Orcha Villas and even though ये trip उन्होंने host की है, every opinion that I have shared, be it regarding the food, the staff, the cleanliness of this place and everything, वो सारा honest है, just like it is in my every other video. So अगर आपको और भी details चाहिए and you want to book this property for your weekend trip to Orcha, do check out the description box below. And apart from that, I believe what I have experienced कि Orcha has so much to offer to tourism and उसको इतना boost नहीं मिला है mainstream, social media and mainstream media में इतना ज़्यादा. एंड यहाँ पे 8 से 10 हज़ार जो आबादी है लोगों की, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ही टूरिज़म है. सो दिस वीडियो इज़ माई पार्ट कि यहाँ पे टूरिज़म को बूस्ट मिले. सो इफ़ यू कम हेयर प्लीज़ डोंट बार्गेन. तो बहुत जेन्युइन प्राइस लगाते हैं सारे एंड वी डोंट गो टू ज़ारा एंड H&M, वी बार्गेन वहाँ पर. एंड यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जिनका प्राइमरी सोर्स ही टूरिज़म है. सो येस, यू वंस यू कम हेयर जस्ट एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ ओरछा. एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, नोटिफिकेशन बेल बटन को हिट कर देना टू नो अबाउट द नेक्स्ट प्लेस जहाँ पर हम जा रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी इन मध्य प्रदेश ओनली. And yes, I'll see you guys next time. My social media channels will be here in the description box as well. वहाँ पर सबसे पहले पता लग जाता है which is my next location. So do follow me there and I'll see you guys next time. Bye bye.